Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children, stay happy and stay healthy. Keep yourself protected, keep yourself masked whenever you step out of your home, and keep yourself safe. एंड एट द सेम टाइम लाइक जैसे मैं हर वीडियो में आप लोग को बोलती हूँ कि डू वॉच ऑल द वीडियोज रेगुलरली, डू स्टडी वेल फॉर योर अपकमिंग इवैल्यूएशन 3 टेस्ट, प्रिपेयर वेल एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज सी द वीडियोज. एंड इन वीडियोज चिल्ड्रन आई डू सम एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज ऑल्सो. लेसन के बीच से जैसे क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वन वर्ड आंसर हैं, वो सारे भी मैं कराती हूँ. Okay, so my sincere advice to you all is to watch the videos on a regular basis. Now children, we are doing chapter number 19, that is our nation. So here I am with one more video from this chapter only. I have already explained the lesson. In this chapter we talked about our nation, that is nation and mainly the national symbols. क्या क्या हमारे national symbols हैं. Okay, so national symbols like our national flag, that is tricolor, then national anthem which is Jana Gana Mana, national song which is Vande Mataram, then national our official languages Hindi and English. Then I told you about different national symbols. हमारे national symbols क्या क्या हैं and why those national symbols are chosen. उन नेशनल सिंबल्स को क्यों चूज किया गया है. ठीक है, बहुत सारे जैसे फ्लावर है, लोटस है, तो वाई ओनली लोटस, देयर आर सो मेनी अदर फ्लावर्स. एनिमल्स में वाई ओनली टाइगर, लायन है, और भी बहुत सारे एनिमल है. टाइगर जो है वो तो लायन जो है बब्बर शेप, टाइगर से भी शायद बड़ा होता है. देन नेशनल फ्रूट में वाई ओनली मैंगो, वाई बैनियान ट्री एज नेशनल ट्री, वाई पीकॉक एज नेशनल बर्ड. तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि वाई जो भी नेशनल सिंबल है, national flower, bird, land animal, water animal, then tree, river, fruit, currency and sport. ठीक है, तो ये सारा मैंने बताया था कि कौन कौन से हैं हमारे नेशनल सिंबल्स एंड व्हाई दे आर चोजन एज आवर नेशनल सिंबल. ओके, वी स्टार्टेड विद द एक्सरसाइजेस. इसके बाद हमने बताया था कि द टू ग्रेट एपिक्स, एपिक्स जिसको महाकाव्य कहते हैं, महाभारत एंड रामायण. These are the two great epics. Okay, Gita is the holy book of Hindus. So Bhagavad Gita है, that is the holy book of Hindus. Mahabharat and Ramayana, these are the two great epics. Okay, फिर मैंने थोड़े से और कुछ some leaders of India, उनके बारे में भी मैंने बताया था, great leaders, कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम मूवमेंट में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था. इनफैक्ट दे ओनली स्टार्टेड एंड लॉट ऑफ पीपल फॉलो देम. लोगों ने फिर उनको फॉलो किया. एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया था. फर्स्ट क्वेश्चन वाज टेक द राइट आंसर. दैट वी हैव डन. द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया. सेकंड वाज आवर नेशनल सॉन्ग इज जन गण मन, वंदे भारत, वंदे मातरम और ओम भूर्भुवः स्वः. तो नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम है. जन गण मन इज नेशनल एंथम एंड ओम भूर्भुवः स्वः इज गायत्री मंत्र. Then the name of our epic is Mahabharata. Gita is the holy book and Panchatantra. Panchatantra जो है वो it is animal stories. Panchatantra में जो characters होते हैं mainly they are animals. These are all fictional stories, मतलब सब imaginary stories होती हैं. And our national tree is banyan. Okay, ये हमने कर दिया था. फिर हमने fill in the blanks किया था. Now today we will be doing another जो और भी exercises है, true and false and then question answers. Answer the following. Okay. So today I will start with C. Since we have already done first and second, today I will start with C. Chapter 9 exercises. 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 C. Write T
true means if the statement is correct, then you have to write T, and if the statement is false, मतलब correct नहीं है, गलत है, then you have to write F. Okay? So the first is our national flag is four colored. COLOURED. Children, I will write the sentences first and then we will write true or false. Okay? Second is our national fruit is BANANA. Banana. Then third is India has 28 states. And fourth one is the capital city of India is New Delhi. Children, when you prepare for the test, do prepare the lessons also thoroughly because questions can come from between the lesson also. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बुक के पीछे एक्सरसाइजेस है सिर्फ उसी में से आएंगे. You can get questions from between the lesson also. Okay? So you must prepare the lesson also thoroughly. अच्छा, now next is now first is our national flag is four colored. मतलब हमारा जो national flag है वो four colored है. Now children, some of you might say कि मैम four colors तो होते हैं, saffron, white and green, and then in between white color there is blue chakra. ठीक है? But we will consider this sentence as false because our national flag is known by the name tricolor or तिरंगा. तीन रंग वाला. Tri means three, और हिंदी में ती बोलते हैं तीन रंग को, तो तिरंगा, that is तीन रंग वाला तिरंगा, और tricolor, three colors. So therefore we consider three colors only. और जो बीच का चक्र है उसको हम कलर में कंसिडर नहीं करते. We consider the main three colors, saffron, white and green. That is why it is known as Tiranga. So we will consider this statement as false. Our national flag is four color, इसको हम false consider करेंगे. ठीक है? Our national flag is three color. That is why the name tricolor or Tiranga. Second is our national fruit is banana. What is our national fruit? अभी national symbols में हमने पढ़ा that our national fruit is mango. So this statement is also false. Our national fruit is mango, not banana. Then India has 28 states. This is true. Earlier 29 states were there. अभी उसमें से जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रह गया. It has become union territory now. So India has 28 states. This sentence is true. सही है. इसके आगे हम क्या लिखेंगे? T. Then the capital city of India is New Delhi. This is also correct. India की capital city मतलब राजधानी. और हर एक कंट्री की अपनी capital city है. Whether it is union territory or states. ठीक है? जैसे चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ इज द यूनियन टेरिटरी. चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एज वेल एज हरियाणा. चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी कैपिटल है. एंड चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी. ठीक है? जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, उनकी कैपिटल क्या है? कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर. लक्षद्वीप इज ऑल्सो एन आइलैंड, इसकी कैपिटल है कावरत्ती. ठीक है? सो all the states have their own
कैपिटल्स एंड एवरी कंट्री, ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, कितनी भी छोटी हो बड़ी हो, हर एक कंट्री की अपनी एक कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी का मतलब क्या है? कैपिटल को हिंदी में कहते हैं राजधानी। तो अभी जैसे जो भी कंट्री को रन करने के लिए जो भी डिसीजंस हैं, जो कुछ भी पॉलिसीज बनानी होती है, जो कुछ भी डिसीजन लेना होता है, सारे लोग एक जगह रहते हैं, देन ओनली इट बिकम्स इजी। तो जो भी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे होती है वो सारी चीजें एक जगह होती है। इसीलिए हर एक कंट्री की अपनी एक कैपिटल सिटी है और हर एक स्टेट की भी अपनी कैपिटल सिटी होती है। लाइक आवर कैपिटल इज लखनऊ। तो जो भी स्टेट को रन करने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो भी डिसीजन है, जो कुछ भी बिल्डिंग्स है, सारी लखनऊ में है। इट बिकम्स इजियर बिकॉज एवरीबडी इज एट वन प्लेस। ठीक है। द नेक्स्ट इज, सो दिस इज ट्रू, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। ये क्या है? ये ट्रू है। ओके। तो चिल्ड्रन इन दिस मैनर, जैसे ट्रू एंड फॉल्स ऐसा नहीं कि बुक में है, जो यही वाले आएंगे लेसन के बीच से भी आ सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ओके। So you must prepare the lessons also thoroughly. Now next is question answers. ठीक है? Now next is question answer. अगर किसी का भी छूटा हुआ है तो आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो। Next we are going to do question answers. Answer the following questions. Next is, this is the answer the following, FOLLOWING. Okay. First question is, what is the name given to the INDIAL Indian flag? Why? There are two questions, children. एक क्वेश्चन में there are two questions. What is the name given to the Indian flag and why? मतलब इंडियन फ्लैग को क्या नाम दिया गया है और क्यों? हर एक उसके पीछे रीजन क्या है? ट्राई कलर बोला, तिरंगा बोला, तो उसके पीछे क्या रीजन है? ओके। सो यू हैव टू राइट द नेम एज वेल एज द रीजन। ओके। व्हाट इज द नेम गिवन टू द इंडियन फ्लैग? द नेम गिवन टू द इंडियन flag is, what is the name given to the Indian flag? क्या बोलते हैं हम? It is known as tricolor or तिरंगा. The name given to the Indian flag is TRICOLOUR, tricolor. Tri का मतलब थ्री, जैसे ट्राइएंगल, जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं, ट्राईसाइकिल जो आप चलाते हो बचपन में, थ्री व्हील्स वाली साइकिल. The name given to the Indian flag is tricolor or तिरंगा, TIRANGA, तिरंगा, as it has bands of THREE, 3 COLOURS, as it has bands of three colors. And what are the colors? These three colors are, कौन से colors है? These three colors are saffron, white and green. As the bands of three colors, SAFFRON, saffron, white and green. Okay, three colors है, that is why it is known as tricolor or tiranga. Then next question, then one more question is there, उसको भी पहले मैं erase कर दूं and then I will write the next question. Okay.
Question number 2 is name two great epics of our country. Name two great epics of India. इसको मैं रब कर दूं and then I will write the second question. Okay. Question number 2 is name two great EPICS epics of India. What are the two great epics? Epics फिर से मैं बता रही हूँ. Epics का मतलब होता है महाकाव्य. Name the two great epics of India. The two great epics of India are Mahabharat and MAHABHARATA. Mahabharat and RAMAYANA. Ramayana. Okay, Mahabharat and Ramayana. These are the two great epics. और जैसा आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि महाभारत इज द स्टोरी. महाभारत में जो कौरव और पांडव के बीच में जो पूरा युद्ध हुआ था उसकी स्टोरी है. एंड रामायण स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम. उनके मतलब सिंस द टाइम ही वाज बोर्न, वो उनके भाई जब पैदा हुए तब से लेकर के पूरा आगे तक, जैसे जब शादी हुई फिर वो एग्जाइल में गए, वनवास में गए, रावण ने सीता जी का किडनैप कर लिया, फिर कैसे लड़ाई हुई, केम बैक टू अयोध्या, पूरी उसमें कहानी है रामायण. ओके, सो दीज आर द टू ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया. वन मोर क्वेश्चन कैन बी, सी चिल्ड्रन, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आंसर्स आपके बुक में दिए हैं सिर्फ वही एग्जाम में आएंगे, उसके अलावा भी क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं. वन मोर क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और सिंस देयर आर टू लैंग्वेजेस सो व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. ठीक है, तो हमारी सिंस टू है इसीलिए मैंने बोला व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ठीक है, भाषाएं, लैंग्वेजेस मतलब प्लूरल हो गया, एंड इसीलिए मैंने बोला व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. सो द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आर हिंदी एंड इंग्लिश. कौन कौन सी है? हिंदी और इंग्लिश. ठीक है, दीज आर द टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. देन चिल्ड्रन टर्न द पेज, पेज नंबर 118. नेक्स्ट इज हॉट्स. ठीक है, हॉट्स दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. एंड हॉट्स में जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चंस लेसन पढ़ने में आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन वो उसका आंसर डायरेक्टली बुक में आपको नहीं मिलेगा. ओके, सो आई विल रब दिस फर्स्ट एंड देन आई विल राइट हॉट्स क्वेश्चन आंसर. इसको भी रब कर रही हूं. नेक्स्ट इज हॉट्स. जो हॉट्स क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द मैप, जो कि मैप दिया हुआ है पेज नंबर 116 पे. उसमें जो इंडिया का मैप दिया हुआ है, हॉट्स क्वेश्चन आंसर इज बेस्ड ऑन दैट मैप. ओके, next is HOTS. Next is children HOTS question answers. Okay, HOTS, this is E. HOTS. HOTS is higher order thinking skill. Now this question, HOTS में जो question है, this is based on the map which is given on page number 116. ठीक है, the question is name the mountain range. Name the MOUNTAIN mountain range in the north. Name the mountain range in the north and the ocean in the south and ocean in the south, which WHICH, which are PROTECTING, protecting India.
मतलब जो नॉर्थ में पूरी माउंटेन रेंज है उसका क्या नाम है, और जो साउथ में ओशन है उसका क्या नाम है, जो कि इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट करना मतलब बचाना, प्रोटेक्टिंग मतलब जो इंडिया को बचा रहे हैं। जैसे मैंने इंग्लिश में आपको बताया कि ING हम किस में ऐड करते हैं, तो यू हैव टू नेम द माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में जो पूरी माउंटेन रेंज है, एंड ओशन इन द साउथ, साउथ में जो ओशन है जो कि इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, now children come to page number, turn to page number 116. Okay, page number 116 में you can see the map, you can see this map. इस मैप पे मैंने बताया था दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं पॉलिटिकल मैप। इसमें सारे स्टेट्स की बाउंड्री बनी हुई है। ओके, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, ये सारे जो है नॉर्थ में आते हैं। बिल्कुल टॉप पे जो है दिस इज 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होती है, ईस्ट, देन उसके ठीक ऑपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ एंड नीचे साउथ। सो ये क्या है, दिस इज नॉर्थ, ये जो है ईस्ट है, पूरा ईस्ट है। ईस्ट में देखोगे ये मतलब यहाँ पे पूरी बे ऑफ बंगाल है। ईस्ट में इधर इफ यू काउंट यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं, दीज आर नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, ये इधर नॉर्थ है और इधर ईस्ट है, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एंड सिंस देयर आर 7 स्टेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज 7 सिस्टर्स। ये ईस्ट है, ईस्ट के ठीक ऑपोजिट वेस्ट है। वेस्ट में ये जो गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब वेस्ट में आते हैं, एंड इधर साउथ है। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम, यहाँ से पूरी स्टार्ट होती है इधर से इंडिया में, हमारी कंट्री में, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के पूरी इधर बीच में यहाँ पे भूटान है, नेपाल है, तो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर पूरी यहाँ नॉर्थ ईस्ट तक आती है। ठीक है, ये नॉर्थ से स्टार्ट होकर के यहाँ से हमारी कंट्री में पूरी जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो पूरी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तक पूरी स्प्रेड की हुई है, फैली हुई है। हिमालयन इज द कंप्लीट माउंटेन रेंज है, मेन द माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला जिसको हिंदी में कहते हैं। हिमालय एक माउंटेन नहीं है, पूरी रेंज का नाम हिमालय है, एंड उसमें बहुत सारी पीक्स हैं, बहुत सारी चोटियां हैं। हिंदी में जैसे अगर आप पढ़ोगे तो हिमालय का मतलब होता है हिम, जैसे हम इंग्लिश में वर्ड्स को ब्रेक करते हैं ना, कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, जैसे रिवर प्लस बैंक इज इक्वल टू रिवर बैंक, तो हिंदी में भी एक होता है संधि विच्छेद, जब 2 वर्ड्स को ऐड करके नया वर्ड बनाते हैं। तो हिमालय को जब हम अलग अलग करते हैं, हिमालय का नाम क्यों हिमालय है, क्योंकि वो सारे टाइम बर्फ से ढका रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो हिम प्लस आलय, हिम मतलब बर्फ और आलय का मतलब होता है घर। जैसे आपने हिंदी में पर्यायवाची पढ़ा होगा, तो आलय जो है वो घर का एक पर्यायवाची है। सो बर्फ का घर, हिम आलय, हिम का आलय मतलब बर्फ का घर, सारे साल वहां पे बर्फ रहती है थ्रू आउट द ईयर, दैट इज वाई इट इज नोन एज हिमालय। सो हिमालय इज द कंप्लीट माउंटेन रेंज, इट इज द नेम ऑफ द माउंटेन रेंज, जो कि नॉर्थ से स्टार्ट होकर पूरी नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीक्स इन दैट माउंटेन रेंज। ठीक है, सो इधर पूरी हिमालय है, इधर ईस्ट में यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, जिसको हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी। जो गंगा नदी है वो बिल्कुल ऊपर से, यहाँ से मैंने बताया था कि कहाँ ग्लेशियर से निकलती है, वहां से निकल करके पूरी प्लेन से बहती हुई, उसमें से रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी और पतली रिवर्स भी निकलती हैं, एंड अल्टीमेटली वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आकर के समुद्र में मिल जाती है। जितनी भी रिवर्स हैं, जितनी भी रिवर्स बहती हैं, जितनी भी नदियां हैं हमारी कंट्री में, वो या तो ईस्ट में या वेस्ट में कहीं पे भी जाकर के वो सारी समुद्र में मिलती हैं। ठीक है, नदियों का कहीं समुद्र में जाके मिलना जरूर, मतलब कहीं तो जाके मिलेगी ना, पानी कहाँ जाएगा, तो जितनी भी रिवर्स है वो जाके समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इधर साउथ में पूरा नीचे इंडियन ओशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर। इंडियन ओशन में ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और इस साइड में है अरेबियन सी। ठीक है, इस साइड में अरेबियन सी है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अरब सागर। ठीक है, अरेबियन सी और अरब सागर। अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ओशन इज महासागर, जैसे मैंने बताया था वाटर बॉडीज में ओशन इज महासागर और सी इज सागर। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी, या हिंदी में आप अरब सागर भी हम कहते हैं। सो नॉर्थ में क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द माउंटेन रेंज, तो इसका आंसर है द माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ इज Himalayan mountain range, HIMALAYAN
Himalayan mountain range, Himalayan mountain range in the north and Himalayan mountain range in the north and Indian Ocean, INDIAN, Indian Ocean in the south, Indian Ocean in the south are protecting India, PROTECTING, protecting India. ठीक है, अभी जैसे इधर माउंटेन रेंज है पूरी हिमालयन माउंटेन रेंज, उसके बाद फिर इंडिया अपना मतलब बहुत सारा जो बॉर्डर है दूसरी कंट्रीज के साथ भी शेयर करती है, उधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इस साइड में फिर चाइना है, ये सारे सबके साथ इंडिया अपना इधर दूसरी तरफ मतलब दूसरे जो ऊपर कंट्रीज है, सी साइड तो पूरा ओशन है, इधर अरेबियन वेस्ट में पूरा अरेबियन अरब ओशन है, अरेबियन ओशन, साउथ में पूरा इंडियन ओशन है एंड ईस्ट साइड में पूरा बे ऑफ बंगाल है। जो इतना ऊपर का पार्ट है ये सारे और ये सारे स्टेट्स जो हैं ये अपने बॉर्डर दूसरी कंट्रीज के साथ जैसे चाइना है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इनके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग इंडिया का मतलब है जैसे मैंने ये बताया कि ये इधर पूरा हिमालयन माउंटेन रेंज है, तो थ्रू आउट द ईयर इट इज कवर्ड विद स्नो, तो इधर से जो हवा आती है वो बहुत ही इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड वेरी चिली विंड, क्योंकि जैसे जैसे हम और हाइट पे जाते हैं और हवा ठंडी होती जाती है और क्योंकि वहाँ पूरा स्नो होता है तो वो जो इतनी ठंडी जो उधर से हवा आती है पीछे से, बिकॉज ऑफ माउंटेन रेंज जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उससे हवा थोड़ी रुक जाती है और जो हमारी कंट्री में जो हवा आती है वो थोड़ी सी उतनी ठंडी नहीं होती है। ऑफ कोर्स इट इज सो चिली, जब ठंड में जब हवा चलती है, कोल्ड वेव चलती है तो कितनी ठंड होती है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग इंडिया का मतलब है दूसरे कंट्रीज से भी हमारा प्रोटेक्शन कर रही है। ठीक है, इधर जो इंडियन ओशन है, so Indian Ocean in the south and Himalayan mountain range in the north are protecting India. ठीक है, now life skill children, life skill as I already told you, life skill मैं हर बार बताती हूँ कि life skills are the skills which you learn from your surrounding, from your environment, अपने आसपास की चीज़ों को देख करके, अपने आसपास के लोगों को देख करके, या क्या हो रहा है आसपास उसको देख करके जो हम चीज़ें सीखते हैं, दे आर लाइफ स्किल्स, हमारी लाइफ स्किल्स है। ठीक है, सो नॉट टू मेक आवर मदरलैंड अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव वी नीड टू टेक सम मेजर्स। अभी हम मतलब कोई भी एक पर्सन, जैसे आपके घर में ये घर एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपके घर में जितना भी जो भी काम है, अगर कोई एक पर्सन किसी सिर्फ एक व्यक्ति को पूरा अगर काम करना पड़ेगा तो कितना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, कितनी मेहनत होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई वी ऑल कॉन्ट्रीब्यूट। पापा जाते हैं घर के बाहर का काम देखते हैं, मम्मी घर पूरा संभालती हैं, आपको स्कूल भेजती हैं, आप स्कूल पढ़ने आते हो, घर के काम में मम्मी की हेल्प करते हो। ठीक है ना, तो इसी तरह से पूरी कंट्री में इतने करोड़ लोग रहते हैं, अगर सारे लोग अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे तो हमारी जो कंट्री है, हमारी जो मदरलैंड है, दैट वुड बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब बहुत अच्छी जगह होगी। तो इसके लिए हमको कुछ मेजर्स लेने होंगे, हमारी भी कुछ ड्यूटी है, हमें भी काम करने होंगे। तो जो कुछ एक्शन दिए हुए हैं, जिस एक्शन को आप सपोर्ट करते हो उसके आगे स्माइली बनाना है और जिस एक्शन को आप सपोर्ट नहीं करते हो उसके आगे सैड फेस बनाना है। ओके, तो फर्स्ट इज वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज। ओके, लाइफ स्किल में यही पर लिख दे रही हूँ, क्वेश्चन से लिखूंगी लाइफ स्किल्स एंड फर्स्ट इज वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, डेफिनेटली वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, तो हम यहाँ पे मैं स्माइली बनाऊंगी। ठीक है, सेकेंड इज वी शुड स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ये भी वी शुड सपोर्ट दिस, हमें हमेशा सच बोलना ही चाहिए। कभी अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है, ठीक है, कोई गलत काम भी हो जाता है, तो यू शुड से कन्फेस इट कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई। बट अगर आप उस गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलोगे तो फिर आप देखोगे कि आपको पता नहीं कितने झूठ और बोलने पड़ेंगे। ओके, थर्ड इज वी शुड वेस्ट फूड, डू यू सपोर्ट दिस? आई डेफिनेटली नॉट सपोर्ट दिस, वी शुड नॉट वेस्ट फूड एट ऑल। फूड हम वेस्ट करते हैं, कितने लोग हैं जिनको रोज खाना नहीं मिलता है, सो वी शुड नॉट वेस्ट फूड एंड वी नीड टू वॉच टीवी अ लॉट एंड वेस्ट टाइम।
मतलब हमें बहुत टीवी देखना चाहिए और टाइम वेस्ट करना चाहिए? नो, टीवी देखो, जरूर देखो, टीवी देखना जरूरी है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एंजॉयमेंट, बट वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। ओके चिल्ड्रन, लाइफ स्किल कोर्स को मैं फिर से एक बार फिर से डिस्कस करूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।